Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Hey, hello and welcome to our yet another new video in which we are going to solve class 9 physics AKUEB paper 2. So आज इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स के पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ मौजूद है 2019 पेपर and this question is from our chapter number 2 Kinematics. सो 3 मार्क्स के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है. डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड वेलोसिटी के दरमियान हमें 3 पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करना है. सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पर. सो हियर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. Speed is the rate of change of distance covered by the body, and velocity is the rate of change in displacement covered by body. This is called velocity. Speed जो है वो distance covered होता है in a unit time, जबकि जो velocity है it is the change of displacement covered by a body in a unit time. So the second point of difference between these two quantity is that speed is a directionless quantity. It does not require direction with its magnitude and unit. Hence, this speed is a scalar quantity. While for velocity, to describe this quantity, we need magnitude, unit as well as direction. So this is a type of quantity that cannot be described perfectly without specifying the direction. So hence the velocity is a vector quantity. It requires direction, while speed is a directionless quantity. So here we have the third point of difference between speed and velocity, such that speed of a moving body cannot be negative or zero. The speed of the moving body is always positive. While if we talk about velocity, so this is a quantity that can be zero, that can be positive or can be negative for a moving body. Moving body की velocity तो zero, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, बट मूविंग बॉडी की स्पीड ना तो जीरो हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है, बट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. Okay, so in the same year 2019 we have got another question that carries 5 marks from this chapter Kinematics. Let's see the part A of this question. A sports car starts from rest. एक स्पोर्ट्स कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है. सो दिस मींस दैट द इनिशियल वेलोसिटी vi of that body is 0 meters per second. Then the question says that it covers a distance of 900 meters. So let's mark S is equal to 900 meters. Then the question states that it attains a speed of 80 meters per second. This means that this is the final velocity, that is 80 meters per second. Then let's see what we have to do in this question. Determine the acceleration of the car. We have to find the acceleration and time required to reach this distance. So two quantity we are going to find in this question. Part A is the acceleration, and secondly we have to find the time for that distance. Okay, so we have made our data for this question. Now let's go through the solution of this question. So as we can see, we can apply the equation of motion to find the acceleration and time. So first of all, let's see the third equation of motion. 2as is equals to vf square minus
vi square. So from this equation, we will find the value of acceleration. So a will be equals to vf square minus vi square divided by 2s. So let's substitute the values. Vf is 80 square minus 0 square divided by 2 multiplied by distance is 900. So simplify करते हैं इसे. 80 square will be equals to 6400 divided by 2 into 900, that will be equals to 1800. These two zeros and zeros will be cancelled out. So fraction हमारे पास आ जाएगा 64 divided by 18. So 64 divided by 18 is equal to 3.5 meters per second square. So this is the answer for the acceleration. Now we will find the time to reach this distance. So for calculating the time to cover this 900 meters, we will use the first equation of motion. Vf is equal to Vi plus At. So the final velocity is 80, initial velocity is 0, acceleration is 3.5 multiplied by time. So from this equation, 80 will be equals to 3.5 t, and t time will be equals to 80 divided by 3.5. So time की जो value है वो equal हो जाएगी 80 divided by 3.5. This means it is equals to 22.85. So t will be equals to 22.85 seconds. So this car will take 22.8 seconds to cover the distance of 900 meters. Let's come to 2018, and in this paper 2 of 9 physics, we have got question number 2, in which we have got a speed time graph of a motorcyclist. So कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास मौजूद है एक मोटरसाइकिलिस्ट का, and we have to find the acceleration of the motorcyclist in the first 20 seconds. So first 20 seconds के दौरान ये हमारे पास जो ग्राफ है, इस ग्राफ की यहाँ बात हो रही है कि इस ग्राफ के अंदर हमें एक्सेलरेशन, या ग्राफ के इस पार्ट के अंदर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. सो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. वी नो दैट द एक्सेलरेशन from speed time graph or the velocity time graph is equal to the slope of the graph. Slope हम मालूम कर लें ग्राफ का, या फिर we can say that the gradient of that graph is equal to acceleration, and for gradient it is equals to delta y over delta x. So gradient मालूम करने के लिए we take 2 points. One will be equals to the starting point and the other is the ending point. So ये दो point हम mark कर देते हैं. This is point A and this is point B. The value of x at point A is 0 and the value of y at point A is 0. इसी तरह से point B पे जब हम x की value देखते हैं तो B पे अगर हम देखें, so this is the value of x, that is 20, और अगर हम y की value देखते हैं B पे, so this is the value of y, that is 25. So we have got two values of y and two values of x. So change in y is 25 minus 0 and change in x is 20 minus 0. So 25 minus 0 will be 25 and 20 minus 0 will be 20. So for acceleration हम simply 25 को divide कर देते हैं with 20, that is equals to 1.25.
So acceleration of the motorcyclist at the start of the journey or the first 20 seconds is equals to 1.25 meters per second square. So this is the correct answer for this part A. Now let's see the second part. The motorcyclist has a constant velocity for how many seconds? So we have to identify the constant velocity. So we know that the horizontal part of the graph represents the constant velocity. So this horizontal part of the graph shows the constant velocity of the motorcyclist. So we can see that this constant velocity starts from 20 and ends at 50 seconds. 20 seconds से लेकर 50 seconds तक that motorcyclist is moving with a constant velocity. So we can say that the car motorcyclist is moving with a constant velocity for 30 seconds. So for 1 mark, the correct answer will be equals to 30 seconds. So in the same year paper 2018 paper 2 we have got in other question from the chapter kinematics for the 5 marks. So in this question a body is moving with the initial velocity a. So part A जब हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन का यहाँ मेंशन कर देते हैं हम that initial velocity is represented by A. After a certain time its velocity becomes B. So final velocity हम represent कर देते हैं B से and the distance covered in this time is S and यहाँ मार्क भी कर देते हैं that initial velocity is A, the final velocity is B, and during this time it has covered a distance S, and we have to derive this equation 2AS equals to VF square minus VI square, B square minus A square. So in short, we have to derive the third equation of motion. So third equation of motion को drive करने के लिए हम start करते हैं derivation. We know that distance is equal to average velocity multiplied by time. And the value of average velocity is equals to Vi plus Vf divided by 2. और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो Vi रिप्रेजेंट किया है हमने A से और Vf रिप्रेजेंट किया है B से. सो ये इक्वल हो जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाय 2. देन हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT. सो A और B अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें Vf और Vi की जगह, so B will be equals to B equals to A plus AT. यहाँ से अगर हम टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं so it will become B minus A divided by acceleration. So इस टाइम की वैल्यू को और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को हम ऊपर डिस्टेंस वाले फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So distance that is represented by S will be equals to average velocity multiplied by time. So average velocity is A plus B divided by 2 and the time will be equals to B minus A divided by A. So इसे फर्दर स्टेप्स के थ्रू हम सॉल्व करते हैं. S will be equals to A plus B multiplied by B minus A and 2 will be multiplied by A that are the denominators. This denominator to A को left hand side पे ले जाकर जब हम multiply कर देंगे so it will become 2AS equals to B square minus
a square. So न्यूमरेटर में इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा b square minus a square. So this expression that we can see in the last step is known as the third equation of motion. So here we have the correct answer for this question. So let's come to the 2017 paper of 9 physics, जिसमें ये क्वेश्चन कुछ मौजूद है हमारे पास from the chapter number 2 Kinematics. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मौजूद है और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमें इंटरप्रेट करना है. सो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है. One thing we need to mark is that we have to interpret or answer the questions with respect to the acceleration from this graph. Acceleration के point of view से हमें अपने answers करने हैं. So first part is that A to B, ये जो A से लेकर B तक का रीजन है, इस रीजन में हमें बताना है कि बॉडी का मोशन किस तरह का है. और हमारे जवाब होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन. सबसे पहले अगर हम ए से बी तक के रीजन को देखें तो ये जो टिल्टेड लाइन यहाँ शो की गई है, इस टिल्टेड लाइन का मतलब होता है कि द बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन. इस तरह के ग्राफ का मतलब होता है कि मूविंग बॉडी की जो एक्सेलरेशन है इट इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव. बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और साथ साथ पॉजिटिव है. सिमिलरली B2C रीजन के अंदर अगर हम देखें तो B2C रीजन में द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सो इट्स मीन वेलोसिटी इज कांस्टेंट. एंड कांस्टेंट वेलोसिटी का एक मतलब ये भी होता है दैट इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी में, इट्स मीन उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगी. फिर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें कहा गया है C to D रीजन में हमें एक्सेलरेशन बतानी है. तो एज वी कैन सी कि C to D रीजन में ग्राफ इज मूविंग डाउनवर्ड. तो उसका मतलब क्या होता है कि C to D रीजन में जब ग्राफ स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस मींस दैट द मूविंग बॉडी हैज कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन. ये बॉडी जो है वो रिटार्ड कर रही है, बॉडी डिसेलरेट कर रही है. दिस मींस दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव और जो वेलोसिटी थी बॉडी की वो डिक्रीज हो रही थी. सो नेक्स्ट वी हैव 2000 so here we have the 2017 paper 2 and this question is of 5 marks from chapter Kinematics. A boat is moving towards south with a steady speed velocity of 30 meter per second. So हमारे पास बोट की स्पीड मौजूद है that is towards south and through a river where there is a steady flow of water in the direction of east with a velocity of 50 meter per second. So यहाँ हमारे पास दो velocities मौजूद हैं. First is the velocity of boat. तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं we have the velocity of boat that is equals to 30 meters per second south. Then we have the flow of water, or we can say that the velocity of water So velocity of the water is 15 meter per second and the direction is east.
तो सबसे फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है कि इलस्ट्रेट द गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम। सो लेबल डायग्राम के थ्रू हमें इन दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर देते हैं। लेट्स से वी हैव दिस इज ईस्ट, सो दिस विल बिकम वेस्ट, एंड दिस इज साउथ, एंड दिस इज नॉर्थ। तो ये हमने यहाँ पर डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर दिया। इस डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम अपने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सूटेबल स्केल अज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ मैं स्केल मेंशन कर देता हूँ दैट 1 centimeter of line will represent 5 meters per second. So इस हिसाब से जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी बोट की, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद लाइन सेगमेंट ऑफ 6 centimeters, और वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो हो जाएगी 3 centimeters। और डायरेक्शन के हिसाब से जब हम इसको मेंशन करेंगे तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी ऑफ बोट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 30 मीटर पर सेकेंड साउथ। तो हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और उस स्टार्टिंग पॉइंट से 6 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। तो यहाँ मैं विदाउट मेजरिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। जब प्रैक्टिस के लिए सब स्टूडेंट्स अपने पास सॉल्व करे होंगे, सो दिस लाइन विल बी इक्वल्स टू 6 centimeter. So this line represents the velocity of boat that is equals to 30 meters per second south. इसी तरह से सेकेंडली हमें वेलोसिटी ऑफ वाटर रिप्रेजेंट करनी है। सो वेलोसिटी ऑफ वाटर के लिए भी हमने एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और हम लाइन ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर्स की। So let's say this is 3 centimeters measured with the help of a ruler, and this represents the velocity of water that is 15 meters per second in the direction of east. So यहाँ तक हमने सॉल्व किया है for the first part। तब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। So second part में we have to show the direction of motion of boat in the diagram, because boat जो move करी थी वो साउथ डायरेक्शन में मूव करी थी, जबकि जो फ्लो ऑफ वाटर था बोट के ऊपर वो था 15 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में। सो हम इस सिचुएशन को हेड टू टेल रूल की मदद से अगर हम ऐड करें, let's say this is the velocity of boat जो कि साउथ डायरेक्शन में था, that is VB, और ये थी velocity of water जो कि थी ईस्ट डायरेक्शन में। तो इन दोनों फोर्सेस से या इन दोनों वेक्टर से जो रिजल्टेंट हमारे पास फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है जिसकी मदद से बोट मूव करी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। सो लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमें कहा है कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। हमें कैलकुलेट भी करके दिखानी है। सो कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी ऑफ बोट हमें पता है कि ये 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर थी, और वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो इक्वल थी 15 मीटर पर सेकेंड के। तो जब हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, so resultant velocity will be equal to square root of velocity of boat square plus velocity of water square. So velocity of boat is 30 and velocity of water is 15. So square root हम calculate करेंगे 30 square plus 15 square का।
सो इस एक्सप्रेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 33.54 meters per second. So दो जो वेलोसिटीज थी बोट की और वाटर की, सो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो एक्चुअल वेलोसिटी जिससे या रिजल्टेंट वेलोसिटी जिससे बोट मूव कर रही होगी इट विल बी इक्वल्स टू 33.54 meters per second. Now let's come to the next year, that is 2016. Question number 2. This is the question from our chapter number 2, Kinematics. So as we can see in the diagram that a car that starts from rest and after 4 seconds it has covered a distance of 10 meters and we have to find the acceleration of the car. So first of all, let's make the data from this given situation. A car starts from rest. This means its initial velocity will be equals to 0 meters per second. It has traveled through a distance of 10 meters in 4 seconds. So the distance s will be equals to 10 meters and we have to find the acceleration of the car. So here is the data. So for solution we will be using the equation of motion. So let's apply the second equation of motion. S equals to VIT plus AT square over 2. So this is the equation known as the second equation of motion. So substitution करते हैं उन variables की जो कि हमें question के अंदर given थे, where s is 10 meters, initial velocity is 0 multiplied by time is 4 प्लस एक्सेलरेशन की जगह a लिख देते हैं बिकॉज ये हमें मालूम करना है. टाइम स्क्वायर विल बिकम 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. So 10 is equal to 16a divided by 2. So 8 and 2 and 16 will be cancelled out. So further solve करने के लिए 10 will be equals to 8a. So a मालूम करने के लिए हम 10 को डिवाइड कर देते हैं 8 के साथ. So finally 10 divided by 8 will be equals to 1.25. So a is equals to 1.25 meters per second square. This is the answer for this question. So here we have the question number 9 of 2016. The given vector f is making an angle theta with the positive x-axis. So first of all what we have to do is we have to resolve the given vector into its rectangular component. तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें rectangular components में इस vector को break कर देना है. And we have to mention the formula. हम formula mention करेंगे to find the magnitude of a single vector and the direction from its rectangular component. तो सबसे पहले तो हम इसकी resolution कर देते हैं. resolution करने का तरीका ये है कि हम ये वाला जो part है ये कहलाता है head of the vector और ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है टेल ऑफ द वेक्टर. सो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस. सो ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Fy. यहाँ मेंशन भी कर देते हैं दिस इज द Fy दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट. साथ साथ
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिप्रेजेंट करना है तो हेड से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी ऑन y एक्सिस. So this line represents the horizontal component of force, that is Fx. So इसे हम कहते हैं horizontal component. ये तो हमारा हो गया first part. Then we have to answer that we have to mention the formula of angle. We have to find the formula of magnitude of the vector and direction. So यहाँ हम formula mention कर देते हैं. हम formula mention कर देते हैं यहाँ given space में. So formula for magnitude हमें यहाँ पर ड्राइव नहीं करना. We have to just mention the formula of magnitude. So magnitude of single vector f will be equals to square root of fx square plus fy square. तो ये हमारे पास आ गया formula for magnitude. इसी तरह से अगर हमें सवाल में एंगल ऑफ द वेक्टर के लिए फॉर्मूला पूछा गया है. सो फॉर्मूला इज थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स. तो ये दो चीजें फॉर्मूले में जो हमसे पूछी गई थी वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी. Now we have got the 2015 paper 2 of 9 physics, and in this question number 2 we have to give the one difference between each pair of the quantities. So first of all we have the distance and displacement. So we know that distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. तो हम यहाँ पर इसके कुछ differences जो हमें पता है वो यहाँ पर मार्क कर देते हैं. So the distance और displacement के दरमियान जो main difference है that is distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. जबकि distance है वो एक moving body का कभी भी zero नहीं हो सकता, it is always positive. जबकि डिस्प्लेसमेंट बॉडी की जीरो भी हो सकती है एक मूविंग बॉडी की, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है. इसी तरह से अगर हम स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस देखें, सो स्पीड इज अ डायरेक्शनलेस क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होती स्पीड में, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज डायरेक्शन. सिमिलरली स्पीड कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव ऑफ अ मूविंग बॉडी, जबकि वेलोसिटी एक मूविंग बॉडी की पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है. सिमिलरली स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान जो मेन डिफरेंसेस हैं कि स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए वी डू नॉट नीड एनी डायरेक्शन, सो दीज आर डायरेक्शनलेस क्वांटिटीज. व्हाइल फॉर वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए वी नीड मैग्नीट्यूड यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन. तो तमाम वेक्टर क्वांटिटीज की एक फिक्स डायरेक्शन होती है. जबकि स्केलर क्वांटिटीज को जब हमें सॉल्व करना है, सो वी कैन सॉल्व ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा, व्हाइल फॉर वेक्टर क्वांटिटीज वी कैन नॉट सॉल्व देम बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा. वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए एक न्यू फॉर्म ऑफ अलजेब्रा जो कि यूज होती है, दैट इज नोन एज वेक्टर अलजेब्रा. So here we have the ERQ of 2015 Kinematics. A person starts driving from his home to the petrol pump which is 1400 meter away. So इस सवाल को हम यहाँ पर illustrate कर देते हैं. Let's suppose this point represents the home and this point represents the पेट्रोल पंप, और होम से लेकर पेट्रोल पंप तक का जो डिस्टेंस है वो है 1400 मीटर.
After traveling 1600 meter, he realized that he has passed the petrol pump. So जो person है वो पेट्रोल पंप से 1400 मीटर जो दूर था वो 200 मीटर और ज्यादा ट्रैवल कर लिया और देन ही टर्न्स हिज कार बैक टू द पेट्रोल पंप। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता है और 200 मीटर आगे चला जाता है और यहाँ से फिर वापस आता है पेट्रोल पंप तक, then he turned his car drive back to the petrol pump and completed his journey in a total of 5 minutes. और ये पूरी जर्नी जो है वो पर्सन कंप्लीट करता है 5 मिनट्स के अंदर, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल 300 सेकेंड। सो आई थिंक दिस सिचुएशन इज क्लियर कि एक पर्सन जो कि जर्नी स्टार्ट करता है अपने होम से और उसे जाना है पेट्रोल पंप तक, और पेट्रोल पंप हमारे पास 1400 मीटर दूर है, बट पेट्रोल पंप पे रुकने के बजाय वो 200 मीटर और आगे कवर कर लेता है और फिर वहां से वापस 200 मीटर कवर करके आता है पेट्रोल पंप तक। अब देखते हैं हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है। वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है और हमें मालूम करना है एवरेज स्पीड ऑफ हिज कार ड्यूरिंग द जर्नी। सो एवरेज स्पीड को अगर हम देखें, द स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। तो अगर हम देखें पर्सन को जाना था पेट्रोल पंप तक जो कि 1400 मीटर था, बट वो 200 मीटर आगे चला गया, इसका मतलब 1600 मीटर कवर किए और फिर वापस से 200 मीटर बैकवर्ड डायरेक्शन में कवर किया उस बॉडी ने, कार ने, और फिर वो वापस आया पेट्रोल पंप तक। इसका मतलब है टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 1400 plus 200 1600 plus 200 back to the pump, that is 1800। टोटल डिस्टेंस 1800 मीटर्स कवर किए और इस पूरी जर्नी में जो टाइम लगा है that is 300 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगी 1800 डिवाइडेड बाय 300। सो इट इज इक्वल्स टू 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई इस कार की। सो हियर वी हैव द 2014 पेपर ऑफ 9 फिजिक्स जिसमें काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। A speed time graph for a car traveling on a straight road is shown below। तो यहाँ हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है और इस ग्राफ में हमारे पास डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ये ग्राफ है। सबसे पहले हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 सेकेंड। तो हमें सबसे पहले 15 सेकेंड्स के दौरान डिस्टेंस मालूम करना है। सो वी नो दैट डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया ऑफ ग्राफ के बराबर होता है डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ में। सो 15 सेकेंड्स अगर हम देखें तो 15 सेकेंड हमारे पास ग्राफ में एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो इस ट्राइंगल की बेस यहाँ 0 और यहाँ 0, तो 0 से लेके 15 तक जो कि बेस हो जाएगी 15, और अगर हम हाइट देखें तो हाइट 0 से स्टार्ट हो रही है और ट्राइंगल की हाइट एंड हो रही है 20 पर। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 2। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 is 2, 2 10s are 20। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 150 meters that is covered between the first 15 सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 150 मीटर जो कि कार ने ट्रैवल किए ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 सेकेंड्स। देन क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें, सो व्हाट इज द डिसेलेरेशन ड्यूरिंग लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड अगर हम देखें जो कि 45 से लेकर
55 तक है। सो एज वी कैन सी ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस पॉइंट से लेकर इस एंडिंग पॉइंट तक हमें मालूम करनी है डिसेलरेशन। सो डिसेलरेशन will be equal to gradient और slope। ग्रेडियंट या स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे जो कि इक्वल होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। सो इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम x एक्सिस पे चेंज देखें तो 45 से 55 हो गया, दैट मींस 55 माइनस 45। और अगर हम y एक्सिस पे देखें तो वेलोसिटी 10 थी और पॉइंट बी पे 55 सेकेंड पे आके वेलोसिटी 0 हो गई, तो दिस मीन 0 माइनस 10। So 0 minus 10 will be equals to minus 10 or 55 minus 45 is plus 10. So deceleration of that car is equal to minus 1 meters per second square. So this is the answer of the second part of the question. फिर अगर हम देखें that is the third part जिसमें हमें कहा है कि what is the average velocity of the whole journey. So average velocity is equal to total distance divided by total time. टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। सो अब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, हम तीन डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। दिस इज d1, देन इसको हम कर देते हैं d2 और ये पूरा लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा d3। सो डिस्टेंस हमें पता है एरिया के बराबर होते हैं, तो d1 जो है वो ट्राइंगल का एरिया है जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट किया, दैट इज 150 मीटर। उसके बाद जब d2 कैलकुलेट करना है तो d2 हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। इस रेक्टेंगल की लेंथ है 15 से लेकर 35, सो 35 माइनस 15, तो लेंथ हो जाएगी इसकी 20। और ब्रेथ अगर हम देखें तो ब्रेथ इसकी फॉर्म हो रही है 0 से 20 तक, तो इसकी ब्रेथ भी आ रही है 20। सो द डिस्टेंस कवर्ड इन द सेकेंड पोर्शन जो कि मैंने यहाँ ग्राफ में मेंशन किया है रेक्टेंगल में, तो वो हो जाते हैं 400 मीटर्स। इसी तरह लास्ट पार्ट में डिसेलरेशन के दौरान डिस्टेंस देखें तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस divided by 2. So the height is 20, the base is 35 to 55, that is 20 divided by 2. So ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 200 के। तो यहाँ हमने तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए। सो एवरेज वेलोसिटी will be equals to total distance divided by total time. So total distance हो जाएगा 400 plus 200 600 and 600 plus 150 that is 750 divided by total time जो था वो था 55 seconds का। So average velocity finally हमारे पास आ जाएगी 750 divided by 55, so 13.63 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई इस पर्सन की ड्यूरिंग दी होल जर्नी। सो सेम पेपर 2014 में एक और क्वेश्चन हमारे पास काइनेमेटिक्स से रिलेटेड मौजूद है। ड्राइव द न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ड्राइव करनी है। सो द जो स्पेस गिवन है वहाँ हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं फॉर द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। So second equation of motion we know that it is equals to S equals to VIT plus AT square divided by 2। तो ये वो इक्वेशन है जो अभी हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
सो एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखें, सो एवरेज वेलोसिटी VAV is equal to VI plus VF divided by 2. सो डिस्टेंस के फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। सो डिस्टेंस जो कि S से रिप्रेजेंट होता है, एवरेज वेलोसिटी हम VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। देन फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम रिकॉल करें, इट स्टेट्स दैट VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। तो इस VF को हम रिप्लेस कर देते हैं इस VF की जगह। सो हमारा जो फॉर्मूला है S इक्वल हो जाएगा VI, और जो VF आ रहा है यहाँ पर इसकी जगह हम पुट कर देते हैं VI प्लस AT एंड होल डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इस बाहर जो फॉर्मूले के अंदर VI और VI है इनको हम ऐड कर देते हैं। सो इट विल बी इक्वल्स टू 2VI प्लस AT डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये इक्वल हो जाएगा 2VIT प्लस AT स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को दोनों टर्म से जब हम डिवाइड कर देते हैं सो 2VIT डिवाइडेड बाय 2 प्लस AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 एंड 2 जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन फाइनली आ जाएगी VIT प्लस AT square divided by 2. So this equation is known as the second equation of motion. Here we have 2013 kinematics और question number 2 हमारे पास मौजूद है। Explain that motion and rest are relative terms। और साथ साथ ऑप्शन क्वेश्चन बी में हमें कहा है कि give any 3 examples to show that body can be rest and in motion simultaneously। so अगर हम motion को define करें, so motion is the state of the body जिसमें body की surrounding change हो with respect to time, जबकि state of rest का मतलब होता है कि body की state body की जो surrounding है वो same रहे with respect to time। so this is known as state of rest। सो यहाँ फर्स्ट पार्ट के आंसर में मैंने रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन कर दिया है। देन लास्ट 2 रॉस के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन की हैं फॉर रेस्ट एंड मोशन। जो बी पार्ट है इसका सवाल का, उस बी पार्ट में हमें कुछ ऐसी एग्जांपल्स देनी है जिसमें हम ये एक्सप्लेन करें कि जो टर्म है रेस्ट एंड मोशन दे आर रिलेटिव, कि मोशन स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट ये दोनों टर्म्स एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। ये दोनों टर्म्स है वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के ऊपर। ऑब्जर्वर किस तरह से ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर किस जगह से ऑब्जर्व कर रहा है, इस ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा कि उसकी जो ऑब्जर्वेशन है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन क्या होगी। 2 ऑब्जर्वर सेम ऑब्जेक्ट के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट भी कह सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन भी कह सकते हैं एट द सेम टाइम। तो यहाँ मैं अभी कुछ एग्जांपल्स कोट करता हूँ जिससे हमें ये डिफाइन हो जाएगा कि बॉडी की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और जो मोशन है वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर। सो यहाँ हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में कार है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। कार के अंदर 2 पर्सन मौजूद हैं, ए और बी। सो अगर पर्सन ए से पूछा जाता है स्टेट का पर्सन बी की, सो दिस पर्सन ए विल से दैट द पर्सन बी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू कार। बट जबकि अगर हम सेम पर्सन बी के बारे में इस ऑब्जर्वर सी से पूछें, सो दिस पर्सन सी विल से दैट ये जो पर्सन बी है वो स्टेट ऑफ मोशन में। क्यों? बिकॉज सराउंडिंग पर्सन सी के हिसाब से चेंज हो रही है। तो यहाँ 2 ऑब्जर्वर थे, ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर सी। ऑब्जर्वर ये कह रहा है कि जो पर्सन बी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, जबकि एट द सेम टाइम पर्सन सी कह रहा है कि जो ऑब्जर्वर पर्सन बी है वो स्टेट ऑफ मोशन में। तो ए के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट है
पर्सन बी, और सी ऑब्जर्वर के लिए जो पर्सन बी है वो स्टेट ऑफ मोशन है। तो सेम टाइम में सेम ऑब्जेक्ट के सेम पर्सन के बारे में दो अलग अलग ऑब्जर्वर हैं जो कि डिफरेंट आंसर कर रहे हैं कि पर्सन बी रेस्ट में भी है, पर्सन बी मोशन में भी है, बट एक अलग ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है, एक अलग ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है। तो दिस एग्जांपल स्टेट्स दैट कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर। यहाँ मैंने एक सेकेंड एग्जांपल कोट की है कि दो ट्रेन्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं विद द सेम स्पीड। ये जो एरो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रेन की स्पीड की डायरेक्शन को। तो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कर रही हैं, और दोनों ट्रेन की जो विंडोज हैं उसमें दो पर्सन हैं जो कि एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर्सन ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है, बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है। दोनों से अगर पूछा जाए एक दूसरे की स्टेट का, तो दोनों एक दूसरे के बारे में कहेंगे कि पर्सन बी कहेगा कि ए स्टेट ऑफ रेस्ट में है, पर्सन ए से पूछा जाएगा बी के बारे में तो ही विल से दैट पर्सन बी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बिकॉज दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कर रही हैं। पर जबकि अगर एक ऑब्जर्वर जो कि ट्रेन से बाहर मौजूद है पर्सन सी, उससे अगर पूछा जाएगा पर्सन ए और बी के बारे में, तो ये पर्सन सी कहेगा कि ये दोनों पर्सन जो ट्रेन में मौजूद हैं वो स्टेट ऑफ मोशन में। तो वंस अगेन सेम टाइम पे सेम इंस्टेंट पे दो ऑब्जर्वर सेम ऑब्जेक्ट के बारे में डिफरेंट आंसर कर रहे हैं। पर्सन ए कह रहा है कि बी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, पर्सन सी कह रहा है कि बी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो सेम टाइम पे दोनों ऑब्जर्वर बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि ए के हिसाब से बी रेस्ट में है, सी के हिसाब से बी मोशन में है, बिकॉज रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर। एक और एग्जांपल्स देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब लेट्स से एक पर्सन है, ऑब्जर्वर ए है जो कि एक ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर इस पर्सन ए से इस ट्री के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेट है ट्री की, पर्सन ए क्विकली आंसर करेगा दैट ट्री इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बिकॉज ट्री की सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही। जबकि अगर एक एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में मौजूद है अर्थ से बाहर, अगर एस्ट्रोनॉट से पूछा जाएगा कि ट्री की स्टेट क्या है, तो एस्ट्रोनॉट विल से दैट द ट्री इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, बिकॉज अर्थ मूव कर रही है तो एस्ट्रोनॉट के लिए ट्री भी मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर ए भी मूव कर रहा है। तो एट द सेम टाइम ट्री ऑब्जर्वर ए के लिए रेस्ट में है और ऑब्जर्वर एस्ट्रोनॉट के लिए स्टेट ऑफ मोशन में। तो इस तरह से we can mention so many examples in such a way that we can explain that state of rest and motion are relative terms, and these two terms are relative to the observer. दोनों terms observer पर depend करती है कि observer कहाँ से किस तरह से observe कर रहा है। So then we have question number 8 of 2013 Kinematics chapter. A boy walks 750 meter north and then 500 meters southeast at 40 degrees to reach home. Draw a vector diagram to determine the resultant displacement of the boy using the suitable scale. सो वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक सूटेबल स्केल ले लेते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले डेटा नोट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 750 मीटर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड 500 मीटर्स इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन एट 40 डिग्रीज। सो यहाँ सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देंगे दैट ये हमारे पास हो जाएगा लेट्स से ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, लेट्स से दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। तो इस डायरेक्शन के हिसाब से हम अपने वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। साथ साथ हमें यहाँ पर स्केल एज्यूम करना है, एक स्पेसिफिक स्केल जिसकी मदद से हम इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स से 1 सेंटीमीटर ऑफ लाइन on this vector diagram represent 250 meters। 1 सेंटीमीटर की लाइन को हम
250 मीटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 500 मीटर्स अगर हमें रिप्रेजेंट करने हैं तो उसके लिए हम 2 सेंटीमीटर की लाइन, और 750 मीटर्स अगर हमें रिप्रेजेंट करने हैं सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड विद द 3 सेंटीमीटर लाइन। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 750 मीटर्स नॉट। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और 750 मीटर्स नॉट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमने लेट्स से दिस इज 3 सेंटीमीटर लाइन। यहाँ मैंने विदाउट मेजरमेंट स्केल लेकर जो है वो स्केल लेकर विदाउट मेजरमेंट ये लाइन ड्रॉ की है, वेक्टर ड्रॉ किया है। सब अपने पास, अब तमाम स्टूडेंट्स अपने पास जब इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये मेजरमेंट को लेते हुए रूलर की मदद से इसे ड्रॉ करना है। सो ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया 750 मीटर्स नॉट, और ये रिप्रेजेंट किया है हमने विद द हेल्प ऑफ 3 सेंटीमीटर लाइन। देन उसके बाद जो सेकंड वेक्टर है इट इज 500 मीटर साउथ ईस्ट। तो हम इसी पोजीशन से जहां ये वेक्टर एंड हुआ है वहीं से हम 40 डिग्री बनाते हुए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये हमारे पास ईस्ट मौजूद है राइट डायरेक्शन में, और साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। तो अगर हम 40 डिग्री साउथ ईस्ट लेते हैं तो यहाँ लेट से मैं एक डॉटेड लाइन बनाता हूँ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ। अपवर्ड डायरेक्शन में साउथ है और यहाँ पर वेस्ट है। मैं बाद में इस डॉटेड लाइंस को रिमूव कर दूंगा। तो अब मुझे 500 मीटर्स को शो करना है एट 40 डिग्री साउथ ईस्ट। तो मैंने उसके लिए 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है और 40 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हमारे पास 40 डिग्री का यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, और ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है 500 मीटर्स 40 डिग्री साउथ ईस्ट, और लाइन हमने ड्रॉ की अकॉर्डिंग टू आवर स्केल दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, सो अब हमें यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर शो करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ हमारे पास एक टेल मौजूद है फर्स्ट वेक्टर की, और यहाँ हमारे पास हेड मौजूद है लास्ट वेक्टर का। तो टेल जो फर्स्ट वेक्टर की है उसको हम ज्वाइन कर देंगे हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर से। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो अगर हमें रिजल्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ तरीका समझा देता हूँ कि वो किस तरह से मालूम करेंगे। अब क्योंकि मैंने मेजर करके ये लाइंस ड्रॉ नहीं किए हैं तो माइट भी मेरा आंसर जो है वो करेक्ट ना आए, बट फिर भी मैं यहाँ पर मेथड सिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने उसको रिजल्टेंट मालूम करना है। सो ये बात अगर याद रखनी है कि जो स्केल लिया था उस स्केल के मुताबिक अगर मैंने 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, सो मैं ये करूंगा कि मैं स्केल की मदद से रिजल्टेंट को मेजर कर लूंगा टेल से लेकर हेड तक। तो हम क्या करेंगे, हम रूलर की मदद से मेजर करेंगे रिजल्टेंट की लेंथ, मेजर लेंथ ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की लेंथ को हमने मेजर करना है स्केल से, और उसे हम, ये जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर्स के अंदर होगा, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे स्केल से दैट इज 250 मीटर्स। सो 250 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा जिसका यूनिट होगा मीटर्स। तो ये तरीका है रिजल्टेंट इस वेक्टर डायग्राम के जरिए मालूम करने का। देन सवाल में देखते हैं, सवाल में कहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इफ इट टेक्स 5 मिनट्स टू रीच द होम। तो यहाँ हमें वेलोसिटी भी मालूम करने के लिए कही है। सो वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये जो रिजल्टेंट था हमारे पास, दिस इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा उसे हम यहाँ पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देंगे टाइम से, जो कि 5 मिनट्स था।
5 मिनट्स का मतलब होता है 300 सेकेंड्स। तो अब वेलोसिटी मालूम करने के लिए इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारे पास इस वेक्टर डायग्राम से मेजर करके आई थी, उसको 300 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट वेलोसिटी आ जाएगी मीटर्स पर सेकेंड में। यहाँ मैंने इसे आंसर को इसलिए नहीं किया बिकॉज जब मैंने वेक्टर्स को ड्रॉ किया था तो मैंने स्केल की मदद से इसे ड्रॉ नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है 2012 का पेपर जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। सो सवाल के अंदर एज वी कैन सी हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो है एक साइक्लिस्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ मौजूद है। सो देखते हैं कि हमें सवाल के अंदर क्या चीज़ें पूछी गई हैं। What is the velocity of the cyclist? What will be the velocity of the cyclist be after 5 seconds? So as we can see, ये हमारे पास 5 सेकेंड नजर आ रहे हैं ग्राफ के अंदर। 5 सेकेंड के बाद अगर हम देखें तो 5 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो यहाँ हमें नजर आ रही है कि इट इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ रही है और इस कांस्टेंट की अगर हमें वैल्यू देखनी है तो एज वी कैन सी इन द ग्राफ कि वेलोसिटी जो बॉडी की है, साइक्लिस्ट की है, वो है 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। देन सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, ड्यूरिंग विच टाइम द साइक्लिस्ट हैव नो एक्सेलरेशन। साइक्लिस्ट के अंदर कोई एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। सो ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल, हमें टाइम इंटरवल बताना है। सो नो एक्सेलरेशन का मतलब है कि साइक्लिस्ट की जो एक्सेलरेशन है वो हो जीरो। और जीरो कब होती है एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? दिस टाइप ऑफ रीजन जो कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन शो करती है कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो द एक्सेलरेशन इज जीरो ड्यूरिंग विच टाइम। तो 5 से शुरू हो रहा है ये पीरियड जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है और 15 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन जीरो है बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन 5 से शुरू हो रही है और 15 पर एंड हो रही है। तो हम यहाँ पे इंटरवल हमें बताना है ड्यूरिंग विच इंटरवल, तो हम यहाँ आंसर करेंगे ड्यूरिंग 5 seconds to 15 seconds। ये इंटरवल हो जाएगा जिसका मतलब है टोटल ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक साइक्लिस्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट थी और साइक्लिस्ट की जो एक्सेलरेशन है इट वाज जीरो। देन लास्ट थर्ड पार्ट को देखते हैं। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड ड्यूरिंग 5 to 15 सेकेंड। 5 से लेकर 15 सेकेंड तक जो साइक्लिस्ट था उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो एज वी कैन सी यहाँ ग्राफ में 5 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स तक ड्यूरिंग 5 to 15 सेकेंड्स अगर हम देखें तो 5 से 15 सेकेंड तक हमारे पास यहाँ फॉर्म हो रहा है एक रेक्टेंगल। एरिया अंडर द ग्राफ हमें कैलकुलेट करना है बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व। ग्राफ का जो एरिया है, जो भी शेप फॉर्म हो रहा है, इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। सो रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमें पता है इसकी है 5 और 10, 5 से 15 तक, सो वो 10 हो जाएगी और ब्रेथ इसकी है 0 से 5 तक, हो जाएगी 5। तो इस तरह से जो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास इस टाइम इंटरवल के दौरान वो इक्वल हो जाएगा 50 मीटर्स। सो मोटरसाइकिलिस्ट ने या साइक्लिस्ट ने इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 5 से 15 सेकेंड के दरमियान 50 मीटर्स कवर किए हैं। देन लास्ट पार्ट को अगर हम देखें तो लास्ट पार्ट में हमें कहा है कि फाइंड दी डिसेलरेशन। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब हमें डिसेलरेशन मालूम करनी हो, सो डिसेलरेशन हमेशा इक्वल होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप और ग्रेडियंट। और स्लोप और ग्रेडियंट निकालने का तरीका चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ में आइडेंटिफाई करना है कि रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहाँ हो रही है। तो एज वी कैन सी
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, पॉइंट इसको हम ए कह देते हैं, ये हमारे पास बी हो जाएगा। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के दरमियान बॉडी डिसेलरेट कर रही है और डिसेलरेशन शो होती है विद दी डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। सो पॉइंट ए के ऊपर अगर हम x की वैल्यू देखें तो यहाँ x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू है 5। इसी तरह से पॉइंट बी पर अगर हम x की वैल्यू देखें तो 15 और 20 के बीच में लाइन बन रही है, दैट इज 17.5। और अगर हम y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो यहाँ जो नीचे क्वेश्चन हमें डिसेलरेशन मालूम करनी है, तो मैं यही ग्राफ के साथ मालूम कर देता हूँ दैट डिसेलरेशन is equal to slope और डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यहाँ हमारे पास 2y मौजूद हैं, 2x मौजूद हैं। सो चेंज इन y हमारे पास हो जाएगा 0 - 5 और 2x हमारे पास मौजूद है 17.5 और 15, तो 17.5 - 15। सो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा -5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 17.5 - 15। सो ये इक्वल हो जाएगा 2.5 के। सो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2.51 is 2.5, 2.52 are 5। सो इन शॉर्ट जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है डिसेलरेशन का, इट इज इक्वल टू -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारे पास आंसर कंप्लीट हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है सी 2012 पेपर में, जिसमें हमें ड्राइव करनी है न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अगर हम अपने वीडियो के स्टार्ट वाले क्वेश्चंस को रिकॉल करें तो वहाँ हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था, S इज इक्वल टू VIT प्लस AT स्क्वायर divided by 2. This equation is the Newton's second equation of motion, जो कि हम स्टार्ट ऑफ दी वीडियो में एक साल के पेपर में इसी तरह का सेम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to